امریکہ 20 سال بعد بھی افغان جنگ نہیں جیت سکا تو اڈوں سے کیا کرے گا؟ وزیر اعظم عمران خان کا سوال۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے مضمون میں واضح کیا، امریکہ کو اڈے دیے تو پاکستان میں پھر دہشت گردی بڑھے گی۔ ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر دی، اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کا شراکت دار بننے کو تیار ہے۔ ہم خانہ جنگی نہیں، مذاکرات سے امن چاہتے ہیں۔ امریکی ڈرون حملوں سے جنگ نہیں جیت پائے لیکن نفرت پیدا کر دی۔ افغانستان کے کسی بھی فوجی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں، اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں۔ امریکی انخلا کے بعد کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے۔ حیرت ہے، صدر بائیڈن نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا ٹویٹ، لکھا، پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان سے انخلا کیسے موثر ہوگا؟ افغانستان سے انخلا کے معاملے میں پاکستان کو ساتھ لے کر نہ چلنا تباہی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ عراق کے معاملے سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ اتحادی مخالف مل بیٹھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی بولے، سینٹ الیکشن میں زرداری کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ دونوں رہنماؤں کا آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی مضبوطی پر اتفاق۔ کہا، عدلیہ کا احترام جمہوریت کا ایک جزو ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، منی لانڈرنگ نہیں کی۔ شہباز شریف کا ایف آئی اے کے الزامات سے صاف انکار۔ چینی اسکینڈل میں اپوزیشن لیڈر کی ایف آئی اے لاہور پیشی، 1 گھنٹے تک تفتیش، 5 رکنی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیے۔ شہباز شریف نے کہا، بطور وزیر اعلیٰ کسی قسم کے غلط کام میں ملوث نہیں رہا۔ بزنس اکاؤنٹ سلیمان شہباز دیکھتے ہیں، پیسے کلرکس اور نائب قاصدوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کا علم نہیں۔ ذرائع کے مطابق چند سوالات کے جواب نہ دیے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد ریگل چوک پر جمع رہی، پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی۔ مال روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ نے سیاسی انتقام کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ شہباز مفرور بیٹا واپس لائیں، اداروں کے سامنے پیش کریں، وزیر مملکت فاروق حبیب کا مطالبہ۔ کہا، شہباز شریف کی شوگر مل سے 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی۔ نائب قاصد، کلرک، کیشیئر اور مینیجر کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں، کالے کرتوتوں کے باعث شہباز شریف کی ایف آئی اے میں پیشی ہوئی۔ ایف آئی اے کو دھمکیاں دینا اور جتھوں کے ساتھ پیش ہونا ان کا وتیرہ ہے۔ ہم 2000 ارب روپے سے زیادہ اس وقت ان قرضوں کا پیسہ دے رہے ہیں جو ہم نے نہیں لیے۔ 2 خاندان بیٹھے، ایک خاندان یہاں سے اسلام آباد سے پیسے لیتا ہے، وہ پیناما میں کے ذریعے لنڈن میں پراپرٹیاں خریدتا جا رہا ہے۔ دوسرا خاندان یہاں سے پیسے لیتا ہے، وہ دبئی میں اور کینیڈا میں اور پیرس میں پراپرٹیز لے جا رہا ہے۔ 1700 ارب کا حساب دو۔ فواد چودھری نے سندھ حکومت سے حساب کتاب مانگ لیا۔ اسمبلی فلور پر کہا، سندھ کو 2 سال میں 16 سے 1700 ارب دیے گئے، گرانٹس کی علیحدہ رقم ملی۔ سندھ حکومت نے کیا کیا؟ پیسہ لندن، کینیڈا، امریکہ، پیرس اور دبئی چلا گیا۔ اپوزیشن کو بکھرا ہوا گروہ قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا، اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں۔ اپوزیشن کی کوئی لیڈرشپ نہیں، ابھی سے اگلے الیکشن کا واویلا کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے آئندہ بھی عمران خان کی حکومت ہوگی۔ احسن اقبال کو منی بجٹ کا انتظار، بجٹ منظور ہوتے ہی مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں، گزشتہ 3 برسوں سے منی بجٹ آ رہے ہیں، اس سال بھی آئیں گے۔ پرویز خٹک کے مطابق غربت نہیں، چور چور کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوا۔ 35 روپے کلو آٹا اور 55 روپے کلو چینی دینے والے کیا چور تھے؟ شازیہ مری کا این ایف سی کے تحت سندھ کو 106 ارب کے بقایا جات دینے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کا 13 گھنٹے طویل اجلاس، ایوان میں 8 اراکین موجود تھے۔
कोरोना के वार कम मगर वैक्सीन उससे भी कम। हुकूमत का वैक्सीन की किल्लत का एतराफ, प्लान भी तब्दील कर लिया। दूसरी खुराक लगाने का दौरानिया बढ़ा दिया गया। LCOC के मुताबिक दूसरी डोज अब 3 हफ्ते की बजाय 6 हफ्तों बाद लगेगी। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से फैसला किया गया। ऑस्ट्राजेनेका के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। वबा से एक दिन में मजीद 27 अमवात, 663 नए मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान में केसेस की शरह मजीद कम, 1.6% पर आ गई। सिंध को भी पंजाब जैसे मंसूबे दो, वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म साहब हमें नालियों की ज़रूरत नहीं, हमें पंजाब की तरह बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए। वैक्सीन की किल्लत का जिम्मेदार विफाक को करार दिया। बोले, वैक्सीन की सप्लाई की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। वैक्सीन कहाँ गई इसका जवाब नहीं मिलता। ये भी कहा, शहबाज गिल की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी को सिर्फ कैश से मतलब, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीदी ट्रेन सिंध हुकूमत पर चढ़ा दी। कहा, उनका सारा धंधा ही नकद पर होता है। कराची से अयान अली फ्लाइट चलती थी, हमें खुशी है यहाँ ज्यादा पैसे मिले मगर ये पैसे अवाम पर नहीं लगते। अयान अली ले उठती है। पर्ची चेयरमैन सिर्फ उसी रेस में अव्वल आते हैं जिसमें कोई और नहीं दौड़ता। सिंध के स्कूल्स और अस्पतालों में गधे बंधे हुए हैं। सिंध ने पैसे लेकर पहले अशराफिया को वैक्सीन लगा दी। 10 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले, सरकारी इमलाक के एवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्कूप बॉन्ड्स जारी करने और पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट बिल की मंजूरी। चेयरमैन PIA असलम खान तैनात होंगे। काबीना ने ममनुआ असले के लाइसेंस के इजरा का मामला मौखर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ और जरदारी पर भरोसा नहीं था। इमरान खान के आते ही तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अपोजिशन को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से खौफ क्यों है? इलेक्शन कमीशन का काम सियासत नहीं है। गर्मी में भी गैस का बहरान शदीद। सिंध भर में CNG स्टेशन एक हफ्ते के लिए बंद। सारिफीन 29 जून की सुबह 8 बजे तक गैस से महरूम रहेंगे। सनतों और CNG स्टेशन समेत घरेलू सारिफीन को भी गैस की किल्लत का सामना। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने सिंध में गैस बंदिश पर विफाक को मगरमच्छ करार दे दिया। कहा, सर्दियों के मसाइल अब गर्मियों में भी होने लगे। बलूचिस्तान हुकूमत में बहरान का खतरा टल गया। शहरयार आफरीदी ने अहम किरदार अदा कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकातें। यार मोहम्मद रिंद को वजारत से मुस्ताफ़ी होने से पहले ही मना लिया। आज शाम इस्तीफे का ऐलान करना था। जाम कमाल से मुलाकात में इख्तलाफात खत्म करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला ने यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। उधर अपोजिशन डट गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। FIR वापस लिए जाने तक बात ना करने का ऐलान। तारीख में पहली बार पंजाब स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों के लिए फंड कायम होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अकेडमीज का कयाम होगा। सूबे के 200 देहातों में ग्राउंड्स बनेंगे। 1400 मैदानों के लिए अराजी की निशानदही का अमल भी मुकम्मल। स्कूल्स में स्पोर्ट्स परेड बहाल करने और गेम मार्क्स की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने खेलों के फरोग के लिए मुमकिन इक़दाम का हुक्म दे दिया। सूबे में सहूलत बाजारों की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में CPAC के तहत जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, CPAC प्रोजेक्ट्स को शफाफियत और तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है।
इमरान खान पहले दिन से बुज़दिल है, कभी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर दहशतगर्द है कौन। इमरान खान APS हमले में मुलव्विस एहसानुल्लाह एहसान को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं, उन्हें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। बिलावल भुट्टो ने ख्वातीन के लिबास से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान को अफसोसनाक करार दिया। इमरान कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने को तैयार ही नहीं था। एहसानुल्लाह महसूद को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं है। अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं है तो दहशतगर्द कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद। कल अगर कोई और उसामा बिन लादेन की सियासत करने की कोशिश करे, कि दहशतगर्दी की करने की कोशिश करे, पाकिस्तान बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी तरफ कोई काम करे या किसी और की तरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुक्मरानों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। खान साहब का ना कश्मीर का पता, ना हमारा आटमी प्रोग्राम का पता। चाहे वो कश्मीर कॉज हो या पाकिस्तान का एटॉमिक कुव्वत हो, कश्मीर पे उसका पॉलिसी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उसका जो स्टेटमेंट है एटॉमिक वेपन्स के लिए, वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के लिबास से मुताल्लिक बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना चाहिए और जो क्राइम परपेचुएट करते हैं उनके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। और खान साहब का वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहां उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफत, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है ज़्यादती के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। अमरीकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले अपने मजमून में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान अमरीका का साथी तो बन सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अपने फौजी अड्डे अमरीका को नहीं देगा। इमरान खान का कहना था कि जो जंग दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमरीका 20 बरस अफगानिस्तान के अंदर रहकर नहीं जीत सका, तो पाकिस्तान में अड्डों से जीतना ये कैसे मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट में मजमून में एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अमरीका का साथी तो बन सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अपने फौजी अड्डे अमरीका को नहीं देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो जंग अमरीका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर रहकर भी ना जीत सका, तो पाकिस्तान में अड्डों से जीतना ये कैसे मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान माजी में की गई गलतियों को नहीं दोहराएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बन जाएगा, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने अपने मजमून में ये भी लिखा कि अमरीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं, इसलिए पाकिस्तान अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायद करेगा, लेकिन हम अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की ग्रुप बंदी की हिमायत नहीं करेंगे। इमरान खान ने अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम चाहता है। हैरत है, सदर बाइडन ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता नहीं किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान से इनखला कैसे मौसर होगा। अफगानिस्तान से इनखला के मामले में पाकिस्तान को साथ लेकर ना चलना तबाही साबित हो सकता है। पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान से इनखला कैसे मौसर होगा। अमेरिकी सेनेटर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान से इनखला पर पाकिस्तान को साथ लेकर ना चलना तबाही साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत मांग ली। ज़राए के मुताबिक इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच बारे वज़ीर आज़म के तासुरात को सेंसर किया गया। आज़ादी इज़हार पर कदगल लगाने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत तलब कर ली। ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। आज़ादी इज़हार पर कदगल लगाने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत तलब।